we shall discuss like that some questions on the basis of ionic product like that. In worksheet 2, worksheet 1 sorry, मॉड्यूल 5 का जो आपका वर्कशीट है आयनिक इक्विलिब्रियम की दे रहा, 3 वर्कशीट देंगे, उसमें से सेकंड वर्कशीट का जो क्वेश्चन है, लाइक यू कैन सी इन गूगल क्लासरूम में भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड व्हाई? यस, एनी विल टेल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW? यस यस प्रवेद, it will increase. Why? It is correct beta, value of KW particular temperature it is constant है ना, but when we increase temperature it will increase. Why? Yes yes Vijit, yes ma'am. KW वैल्यू प्रवेद ने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज हो जाता है, बट व्हाई? मैम कैन आई? हाँ यस बेटा, यू स्पीक, यू टेल. According to Lee-Chatelier principle, if we increase the temperature of water, the equilibrium will move to the lower to the temperature again. Okay. Simply बेटा, here dissociation of water increases है ना. Yes, ये भी कह सकते हैं because dissociation of any electrolyte is a normally endothermic process. So when we increases temperature, H2 is a weak electrolyte, it dissociates more, okay, so produce more H plus and OH minus ion, so KW value increases. Okay. Yes, the KW with temperature at 25 degrees Celsius, what will be the value of, what is the value of KW? At 25 degrees Celsius, what is the value of KW? Yes. Yes, Deepal. What is the value of KW? Exact value बताइए हमारे, नहीं वो नॉर्मली वी कंसीडर 10 to power minus 14. ओके यस विजित, हाँ यस 1 into 10 की पावर -14. यस बेटा यस, ओके है ना, गुड. तो नाउ सेकंड वन इज द what happen to the ionic product of water if some acid is added into water? Some acid is added into water, so what is the effect on KW? Yes, KW decreases. KW Decreases. no, Prived kara increases. KW is the product of concentration of H plus and OH minus, right? आपको लग रहा है कि एसिड ऐड किया तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो KW इंक्रीज हो जाएगा, बट नो, इफ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो बेस कम हो गया, इट मींस है ना, तो इट मींस KW इज कांस्टेंट. When we add acid or base in water, no change in KW. KW only change in with temperature, right? KW चेंज नहीं होगा बेटा. आप सोचो एसिड बढ़ाया तो अपने H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली इंक्रीजेस, बट सेम टाइम OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. ऑलवेज मैम अगर मैं एसिड मिलाया तो उसका pH लेवल भी तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा ना? Yes, pH definitely pH will be changed because pH is only depend on concentration of H plus ion. Okay, definitely H plus ion concentration increases, pH decreases, है ना? But KW is the product of concentration of H plus and OH minus. If H plus concentration increases in aqueous solution by adding acid, तो सेम टाइम OH माइनस और कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी. ये तो न्यूट्रल वाटर में दोनों इक्वल होती है. ओके, तो कुछ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या होगी, जो H प्लस हमने ऐड किया उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगी, राइट?
तो ड्यू टू दिस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रलाइज होने के कारण OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ concentration of H plus and OH minus ion in aqueous solution is constant, no change, either adding of acid or base, दोनों ही कंडीशन में चेंज नहीं होगी. Is it clear or not? Yes, ma'am. Like that, H2 is a very weak electrolyte. We dissociate and form H plus and OH minus ion, right? When we are adding suppose acid HCl, it produces H plus and Cl minus. Okay, तो ये जो water का OH minus है, that is H plus से पूरा neutralize हो जाएगा, है ना? तो whatever जो भी OH minus already very very less concentration, है ना? तो एक्चुअली आपका OH H plus is rise but OH minus same time decrease. ओके, तो सपोज आपका 0.1 m HCl सॉल्यूशन है, यानी दैट टाइम आपके H plus आयन कंसंट्रेशन इन वाटर 10⁻⁻1 m है. अगर इस वाटर में आपसे पूछा जाए कि हाउ मच OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो लाइक Kw we know 10⁻⁻14 और H plus वाटर के तो हम नेग्लिजिबल मान लेंगे उस टाइम, है ना? तो H plus ओनली ये वाली कंसीडर करेंगे HCl वाली एंड OH minus ion concentration we can define as like that. So that is 10⁻⁻13. Yes, Edwin, like that. Okay, तो simply means that time जब हमने एसिड किया तो वाटर में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो गई, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻13 पहुंच गई. ओके, तो ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ H plus and OH minus ion concentration at a particular temperature it is constant. So hope so this concept is clear. Okay, yes. Now we shall discuss about common ion effect. Common ion effect. Okay, because pH में बेटा actually only we consider H plus ion concentration. Okay, but Kw में दोनों का प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना है. Next one is the common ion effect. It is very important effect and very useful in our day to day life. Okay, जैसे हमारा NaCl का डिसॉल्व फॉर्म में किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ओके, और हमें चाहिए कि NaCl सॉलिडिफाई होकर बाहर निकल जाए, है ना? तो एक मेथड तो है कि हम इवेपोरेशन करते हैं, ओके, तो और इवेपोरेशन के बजाय कई बार हम उसमें HCl गैस पास करते हैं, है ना? तो भी HCl डिसॉल्व एसिड मिला सकते हैं, HCl गैस पास करते हैं, तो इट ऑब्जर्व दैट कि सॉलिडिफाई NaCl अलग होता जाता है, सॉल्ट आपका अलग होता है. ऐसे ही सोप इंडस्ट्री में क्या होता है कि सोप्स आर बेसिकली, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप? सोप्स आर सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड. फैटी एसिड का मतलब होता है जब हमारे एसिड में जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, नॉर्मली एसिड को हम ऐसे लिखते हैं RCONH, तो सोडियम सॉल्ट बना के Na आ जाएगा. तो जब एल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन कार्बन वाली हो, C12, C13, C14, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको बोलते हैं फैटी एसिड्स. तो सोप्स आर बेसिकली सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स. तो सोप जब बनती है तो डिसॉल्व फॉर्म में होती है, बट वी वांट कि सोप सेपरेट आउट हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए. तो उसके लिए भी क्या करते हैं कि सोप सॉल्यूशन में सोडियम सॉल्ट डाल देते हैं. ओके, तो सॉल्ट डालने पे बेसिकली क्या होता है, NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट प्रोड्यूस Na+ and Cl-. ओके, तो बेसिकली बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि हम ऐसे HCl गैस पास की हमने इसको सॉलिडिफाई करने के लिए NaCl सॉल्यूशन डाला, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ओके, तो बिहाइंड दिस कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, तो व्हाट कॉमन आयन इफेक्ट इज द
degree of dissociation of weak acid and weak base is decreased by adding of common ion having electrolyte. I again repeat like that. We are having weak acid, acetic acid. Okay, acetic acid dissociate and form acetate ion plus H plus ion. Okay, but suppose we are adding in this acetic acid sodium acetate. There is a condition. Which electrolyte है? जिस इलेक्ट्रोलाइट में इस एसिड से रिलेटेड कोई भी एक आयन कॉमन होना चाहिए. ओके, इन सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन इज कॉमन. ओके, तो सोडियम एसीटेट डिसोसिएट एंड फॉर्म एसीटेट आयन एंड Na+. ओके, तो अकॉर्डिंगली चेक द प्रिंसिपल. प्रोडक्ट साइड एसीटेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर में acetate ion concentration, that is product, its concentration increases है ना. तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? मैं बैकवर्ड साइड. रिएक्शन will shift towards no products towards reactant. यस मैम, बैकवर्ड डायरेक्शन. yes. and now जो एसोसिएशन से हमारे ये आयन बने थे, वापस से आयन कंबाइन होके क्या बना देंगे? acetic acid, undissociate form of acetic acid, right? तो basically because कोई common ion नहीं मिला, actually strong acid base के लिए तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि strong acid base में क्या नहीं होता? equilibrium ही नहीं होता, right? यस मैम, वो completely dissociate हो जाता है. वो तो already इस तरह का हम साइन लगाते हैं वहां पे, है ना? Only from reactant to product, okay? One-headed arrow वाला. But equilibrium basically present in reversible reaction, weak electrolyte in weak acid or weak bases. So simply we can define like that: dissociation of weak acid and weak base decreases in presence of common ion having electrolyte. जैसे dissociation of acetic acid is decreased by adding sodium acetate, by adding HCl. Okay, HCl में भी acetic acid में भी H है और HCl में भी H है. Okay, तो dissociation और ionization दोनों में से जो भी ionization of weak acid, and bases is decreased by adding common ion having electrolyte. Common ion having electrolyte is called common ion effect. Is it clear? Examples are like dissociation of acetic acid is decreasing by adding sodium acetate. Okay, same way ammonium hydroxide is also weak electrolyte, है ना? It is a weak base. In ammonium hydroxide there is a equilibrium between its ions and undissociate form. But suppose ammonium chloride added in this, it forms ammonium ion and Cl minus ion. So here again, due to presence of this common ion, equilibrium shift in the backward direction. Backward direction means undissociate ammonium hydroxide बनाना. तो ultimate दिखेगा क्या हमें solution में?
कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कम हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिडिफाई होके वापस निकल जाएगा। ओके, अनडिसोसिएट फॉर्म में रहना मींस सॉलिडिफाई होके सेपरेट आउट हो जाना। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई भी सॉल्ट कितना डिसोसिएट होगा इट इज फिक्स्ड। ओके, बट हम इस तरह अगर कॉमन आयनिंग इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, उसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। ओके, तो ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो अनडिसोसिएट form more amount because by the combination of their ions, right? ओके, तो इसकी कई जगह एप्लीकेशंस है। हम सॉल्ट एनालिसिस में इसकी कई जगह एप्लीकेशन पार्ट है कि क्यों हम इस तरह, जैसे बेसिकली हम किसी भी सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं बेटा, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है कि आपको गिवन सॉल्ट में निकालना है कि केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है ना? तो वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए हम एक और टर्म पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर, है ना? उसके बाद बफर सॉल्यूशन बाद में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑल्सो रिलेटेड टू कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड उसकी कई जगह एप्लीकेशन है। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि कैसे NaCl को सेपरेट करने के लिए हम HCl गैस पास करते हैं। बेसिकली क्या होता है आपका कि जैसे NaCl है ना, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नो डाउट। ओके, बट सपोज आपने इसमें HCl पास कर दिया तो ओवरऑल प्रोडक्ट साइड आपके Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, है ना? और कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ओके, जैसे आप कॉपर सल्फेट वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया था, तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट का भी फर्स्ट वी मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करते हैं हम, एक मैक्सिमम अमाउंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर लेते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मे बी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना? बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सोल्ट की या किसी भी सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी फिक्स होती है। ओके, बट सपोज आप ऐसे उसमें कोई और आयन ऐड कर दें तो सोल्यूबिलिटी हम देखते हैं बेसिकली होती क्या सोल्यूबिलिटी, है ना? यस, तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, है ना? बट सारी छोटी चीजें हमें अच्छे से क्लियर करनी है। ओके, तो आई थिंक कॉमन आयन इफेक्ट भी बेसिकली in presence of common ion having electrolyte, dissociation of weak bases acid and weak bases decreases. Okay, this is called common ion effect. Now next one is the solubility and solubility product. It is also important topic, कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, बेसिकली हाउ मच अमाउंट ऑफ एनी सॉल्ट ना, बेसिकली हम सॉल्ट के लिए बात करते हैं, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो बेसिकली जो सोल्यूबिलिटी है वो भी एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर में भी कर सकते हैं और ग्राम पर लीटर में भी कर सकते हैं, है ना? इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस नो मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन। जैसे हम खाने से सैचुरेटेड होते हैं ना, कि उसके बाद हम कुछ नहीं खा पाएंगे, तो सेम वे हियर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ salt is dissolved. Okay, so that quantity in mole per liter or gram per liter is called solubility of the salt, right? तो कुछ सॉल्ट हमारे बहुत अच्छे सोल्यूबल होते हैं, है ना? जिन सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी मोर देन 0.19 होती है, on the basis of solubility
salts are divided in three categories. Salts which have solubility more than 0.1 m. जिन सॉल्ट की solubility जो है वो more than होती है 0.1 m से. कैपिटल M एक्सप्रेस्ड किसको एक्सप्रेस करेगा? कैपिटल M Molarity. मोलरिटी, मोल पर लीटर. ओके, तो soluble salt having solubility more than 0.1 m. ओके, इनको क्या बोलेंगे? solubility more than 0.1 m. तो it means such type of salts are soluble salts. और जिन salts की solubility 0.1 m से 0.01 m range की होती है, salts which are having solubility in this range 0.1 m to 0.01 m range की. Okay, such type of salts are called slightly soluble salts. क्या बोलेंगे उनको? Slightly soluble salts which are having solubility between 0.1 m to 0.01 m, and salts which are having solubility less than 0.01 m, इससे भी कम होती है, उनको बोलेंगे sparingly soluble salts. Such type of salts are called sparingly soluble salts which have solubility less than 0.01 m. Okay, so on the basis of solubility, salts are divided in three categories. Okay, so these salts are soluble salt, these are slightly soluble salts, and जिनकी solubility बहुत कम होती है उनको बोलते हैं sparingly soluble salts. Okay, जिनकी 0.01 m से कम होती है. Okay, तो such type of salts को जब हम डिसोल्व करते हैं तो इजीली ये सोलिडिफाई हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी कम है. तो इसलिए कई बार सॉल्ट एनालिसिस जब हम करते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, solubility product and ionic product. Okay children, practical point of view से these two terms are very important. One is solubility product and other one is ionic product. और salt analysis word में यूज कर रही हूँ, that is having practical importance also. Okay, आपको मिक्सचर दे दिया, आपको दिया गया कि you have this salt. Okay, जैसे मैंने आपको NaCl दे दिया, बट आपको नहीं बताया कि इसमें कौन सा केटाइन है. Salts are having two ions. There are one more term is ionic product. Or one is solubility product. Okay, so simply we are taking like AgCl salt. Okay, NaCl भी बोला मैंने अभी आपको, बट NaCl तो हमारा soluble salt होता है ना. तो solubility product की importance है like that sparingly soluble salts होते हैं जिनकी solubility कम होती है. ऐसे salt को हमने वाटर में डिसोल्व किया है. ओके, ऐसे सॉल्ट्स में भी आपका इक्विलिब्रियम रहेगा, है ना, क्योंकि ये सॉल्ट हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व हो गया, इसके बाद डिसॉल्व नहीं होंगे. ओके, व्हेन तो रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट टाइम सॉल्यूशन आपका क्या हो गया. कब इक्विलिब्रियम आएगा ऐसे सॉल्यूशंस में? कब इक्विलिब्रियम आएगा? जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Saturated solution. No more solute dissolve in the solution. Means no more salt is dissolved in the solution. Okay,
ये हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया है जिसमें 1 केटाइन है 1 एनाइन है। ओके, सपोज इस सॉल्ट का जो है कितना पार्ट डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन में, एस पार्ट, दैट पार्ट रिप्रेजेंट बाय solubility, S is called solubility in mole per liter। ओके, इस सॉल्ट का H पार्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इससे ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा, तो दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? तो मींस रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। तो एस पार्ट सपोज इसका डिसॉल्व हुआ, तो जो आयन है उसका Ag+ की कितनी सोल्यूबिलिटी हुई सॉल्यूशन में? Ag+ भी आपका S बन रहा है, Cl-, अगर S पार्ट, जैसे हम वहां पे क्या बोलते थे, डिसोसिएशन बोलते थे, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारा इतना पार्ट सोल्यूबल हो गया। ओके, एस पार्ट ऑफ द सॉल्ट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो इस एस पार्ट से आयन वैसे ही बनेंगे जितने टाइम्स आयन बनने हैं, है ना। देयर इज ओनली वन आयन, तो Ag+ इज 1, देयर इज 1 Cl आयन, तो 1 Cl- आयन बनेगा। पर जब सोल्यूबल हो जाता है कोई भी सॉल्ट, तो सॉल्यूशन में किस फॉर्म में रहेगा? यस, एनीवन टेल? एनी सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन किस फॉर्म में रहेगा? आयंस के Dissolve फॉर्म। form. यस, आयन फॉर्म में। दैट टाइम उनके दोनों आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे, तभी वो आयन सोल्यूबल फॉर्म में आएगा, और आयन बनने के बाद वो हाइड्रेट हो जाएंगे। यस, हाइड्रेट Ag+ आयन एंड हाइड्रेट Cl- आयन। ओके, तो अगर सिंपल हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ concentration of Cl- and concentration of undissociated AgCl। ओके, बट बिकॉज फ्रेंकली सोल्यूबल सॉल्ट की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो AgCl की फॉर्म में रहेगी, सॉलिड क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl remains constant ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, और इसको एक नया कांस्टेंट आएगा आपका, उसको नेम देंगे यहाँ पे हम KSP, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इस दोनों कांस्टेंट को मिला के दैट इज KSP। ओके, Ag+ प्लस Cl-, है ना, नया कांस्टेंट दे दिया। इस AgH की कंसंट्रेशन को भी इसी में मिला दिया, बिकॉज AgCl इट इज ए फ्रेंकली सोल्यूबल सॉल्ट, सो मोस्ट ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन में आपका कोई चेंज ही नहीं आएगा, वेरी लेस पार्ट डिसॉल्व इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, बिकॉज सॉल्ट इज फ्रेंकली सोल्यूबल। या नहीं भी हो तो भी हम क्योंकि प्योर फॉर्म को हम क्या करते थे, कांस्टेंट में कंसीडर करते थे ना, प्योर सॉलिड है। ओके, सिर्फ AgCl की डिसॉल्व फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम। तो लाइक दैट, सपोज इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व, तो S पार्टी ये बनेगा, S पार्टी ये बनेगा। तो ओवरऑल AgCl के लिए अगर हमें KSP लिखना हो तो दैट इज S²। ओके, तो ये तो हमारा है, लेकिन कई बार हमने सॉल्ट ऐसे कॉमन सॉल्ट दे दिया, लाइक दैट सॉल्ट इज हैविंग X नंबर में केटाइन है और Y नंबर में एनाइन है ना, ऐसा सॉल्ट बन सकता है। जैसे CaCl2 उसमें X की वैल्यू 1 है, लेकिन नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन 2 है, Cl2। ओके, तो किसी भी सॉल्ट में 2 पार्ट्स है, एक केटाइन पार्ट, एक नेगेटिव एनाइन पार्ट। तो सपोज हमारा अगर ऐसा सॉल्ट है और उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे सॉल्ट को डिसोसिएट करने पे हाउ मेनी केटाइन्स फॉर्म, कैसे लिख सकते हैं इसको, A पे चार्ज Y+ एंड कितने एनाइन बनेंगे, YB, और B पे चार्ज कितना आएगा, क्योंकि चार्ज क्रॉस में जाता है। क्या लिखे यहाँ पे,
माइनस एक्स, मैंने एनी कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ए पे चार्ज क्या होगा, ये वाई वाला, और बी पे चार्ज क्या होगा, एक्स। ऐसे सॉल्ट बनते हैं ना आपके क्रॉस में, Yes, ma'am. है ना। तो लाइक दैट वी कैन राइट इन दिस वे, एक्स के ए के टाइम बन गए आपके जिन पे चार्ज वाई प्लस है, और वाई एनाइन बन गए बी जिन पे माइनस एक्स चार्ज है। ओके, like that aluminium sulfate Al2SO4 का होल ट्राइस। ओके, तो लाइक 2 एल्यूमिनियम बनेंगे पर चार्ज क्या आएगा, +3, 3 सल्फेट आयन बनेंगे पर चार्ज क्या आएगा सल्फेट आयन पे, -2, राइट। तो ये Yes, ma'am. सपोज कुछ भी हो सकता है आपका एक्स वाई, नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन, और कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग देयर चार्ज। तो हमारा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम वो फॉर्मूला ही डेराइव कर रहे हैं कि इस तरह कई बार सोल्ट को देख के इसकी सॉल्युबिलिटी इसकी भी, तो हम किस तरह फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो सपोज इस सोल्ट का आपका S पार्ट डिसॉल्व हुआ, राइट। S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सोल्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्ट डिसॉल्व इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट आपका जो ये ए आयन है उसका कितना पार्ट बनेगा, कितना पार्ट डिसॉल्व होगा, क्योंकि उसका एक सोल्ट से ये एक्स बन रहा है, तो आयंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, x इंटू एस। ओके, जहां हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दैट, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी सॉल्ट, लाइक दैट फॉर्मूला AXBY। ओके, तो उसको हम लिखते हैं x s की पावर x के टाइम में सपोज ये हम इसको सिंपल a प्लस लिख सकते हैं, a y प्लस की पावर x, एंड b जो आयन है आपका b x माइनस उसकी भी पावर y जाएगी। जो भी आपके नंबर ऑफ टाइम जितने आयन बन रहे हैं, जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जितने नंबर इन्वॉल्व हो रहे थे, तो यहाँ पे भी जितने आपके आयंस बन रहे हैं उनको भी हम पावर लगाएंगे। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A आयंस एट इक्विलिब्रियम, दैट इज बेसिकली XS, है ना। X टाइम बन रहा है और एक आयन की कंसंट्रेशन S है, तो यहाँ पे तो हमारे X आयन बन रहे हैं, तो X इंटू S करना पड़ेगा की पावर X, क्योंकि S सॉल्युबिलिटी किसकी है, सोल्ट की। जैसे सोल्ट के 2 मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, बट इस आयन से कितने मोल बनेंगे, X टाइम 2 इंटू X, है ना। जितना भी आपका सोल्ट डिसॉल्व हो रहा है, सोल्ट के 1 मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, बट ये आयन आपके कितने बनेंगे, जितने उसके 1 मोल में प्रेजेंट है ना। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग टाइम्स भी जाएंगे। तो सिंपली x s की पावर x, y s की पावर y। अभी हम देखेंगे कि हमारे लिए कॉमन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। ये तो हम कैसे आया वो देख रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग टू डेरिवेशन, हमें ये पता होना चाहिए। तो लाइक दैट वी कैन राइट x की पावर x, y की पावर y यहां से, और s की पावर जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, x प्लस y, तो दैट इज KSP। आपको किसी भी सोल्ट की अगर सॉल्युबिलिटी पता है तो आप उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, हमें पता है X मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, हाउ मेनी पॉजिटिव आयंस आर देयर, यस Ma'am, 2. 2, तो 2 की पावर 2 चला जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ एनाइंस, 3. 3, तो 3 की पावर 3 चला जाएगा, और S की पावर
2 plus 3. Okay, so 2 into 2 4, 4 into 3 की power 3, 27, s की power 5. So this one is that 27 into 4 is equal to 108. 100. 108. 108. 108. that is as 5, right? तो KSP फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर इस सॉल्ट की हमें सोल्यूबिलिटी पता है तो हम उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज s की पावर 5, s की पावर 5। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला। किसी भी सोल्ट का अगर हमें सोल्यूबिलिटी गिवन है, s इज गिवन, व्हाट इज s? s is solubility product. Okay, so simply how we define solubility product? It is the product of its ions in the saturated solution. This is very important part. What is the solubility product? It is the products of its ions, concentration of its ions in the saturated solution, and each ionic concentration is raised to power equal the numerical number of ions formed in the dissociation of electrolyte, या dissociation of salt, and numerically number of ions present in the salt. Okay, so simply basically this one is the definition of this salt is like that. The solubility product of a strongly soluble salt at a given temperature may be defined as the product of concentration of its ions in the saturated solution, with each concentration term raised to power equal to the number of times the ion occur in the equation representing the dissociation of electrolyte. Simply like that. Okay, x और y में क्या लगाया है? Number of ions formed by dissociation of this electrolyte. Okay, x आयन बन रहे हैं तो पावर x चला गया, y आयन बन रहे हैं तो पावर y चला गया. Okay, तो simply, but most important term is the product of concentration of ions in saturated solution, and each ionic concentration of ion is raised to power number of times ions formed by dissociation of the salt. Simply we can say, right? So this one is the, और अगर suppose saturated solution वाली condition नहीं हो, any condition में अगर हम ionic निकालते हैं, product of concentration of ions in the solution, तो that is called ionic product. But in saturated solution में हम product of concentration of ions निकालते हैं, तो that is solubility product. Okay, तो maximum amount of salt only कितना dissolve होगा, कितने ions इसके dissolve form में रहेंगे, that is equal to KSP. Okay, तो suppose अगर किसी solution में हमने कोई solution दे दिया हमें और हमें उसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट पता चल गया, तो दैट इज आयनिक प्रोडक्ट. ओके, तो अगर KSP इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, है ना, उसको कई बार एक और टर्म से भी यूज करते हैं, QSP. ओके, QSP. तो अगर ये है तो हम क्या कहेंगे, हमारा सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इज इक्वल टू KSP आ रहा है हमारा. KSP भी कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्ट के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. KSP इज आल्सो कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर.
क्योंकि उसका कितना अमाउंट किसी सोल्ट का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसोल्व होगा ये भी फिक्स होता है ना, गिवन सॉल्वेंट में, राइट। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज इक्वल टू KSP, तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। और अगर KSP इज लेस देन आयनिक प्रोडक्ट QSP, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि और सोल्ट अभी इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। जैसे हमारी कैपेसिटी और है कि नहीं, अभी हम और कुछ खा सकते हैं, पास्ता पिज्जा कुछ आ गया तो और खा लेंगे, है ना। बट सपोज नॉर्मली आपकी कैपेसिटी है 3 चपाती की और आपने 2 खा चुके हैं, तो हम कहेंगे कि अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है। पास्ता पिज्जा तो वो रोल करेंगे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, है ना, लाइक दैट। तो बट नॉर्मल हमारी जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग हमने इतना लिया, उससे हमने कम खाया, तो हम कहेंगे कि अनसैचुरेशन है, ओके। और KSP इज ग्रेटर देन QSP, अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है KSP से, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे सोल्टिंग आउट इफेक्ट। Yes, तो ma'am. आपका सोल्ट जो है वो सोलिडिफाई होना स्टार्ट कर जाएगा। यस, हाँ, यस, एनी प्रॉब्लम बेटा? No, ma'am. Like that, KSP is less than ionic product, product of ions, है ना, in the saturated solution is greater than, तो हम कहेंगे कि PPT form, precipitate form, precipitate बोलते हैं undissolved salt को, undissolved, Ma'am, yes बेटा? Side होता है. ma'am, please can you define solubility product again? Solubility product, Yes, ma'am. yes मैम बेटा। और इसमें KP ग्रेटर होना चाहिए ना, क्या बेटा? इसमें KSP तो ग्रेटर होना चाहिए आयोनिक प्रोडक्ट से. नहीं बेटा, देखो KSP तक तो अगर आयन की जो आयन्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो अगर इक्वल टू KSP है तब तक तो वो डिसॉल्व रहता है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्ट आउट नहीं होता है। बट जैसे अगर आपके आयन्स ज्यादा हो गए, जैसे मैंने किसी सोल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, ओके, बट आप एडिशनल और आयन डाल रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, उसे तो नहीं पता कि ये आयन उसी सोल्ट के हैं या अदर बाहर से हमने डाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे NaCl का सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो हमारा NaCl सेपरेट आउट नहीं हो रहा है, बट मैंने बाहर से उसमें HCl डाल दिया। HCl डालने पे क्या हुआ, वहां पे Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस NCl माइनस इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया तो मींस आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP हो गया दैट केस में, ओके। तो दैट टाइम क्या होगा, अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सोल्ट सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज PPT, पावर पॉइंट वाला PPT नहीं है, प्रेसिपिटेट, ओके। जो टर्बिडिटी आ जाती है हमारी, कई बार जैसे हम देखते हैं कि क्लियर सोल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि हमारा सोल्ट सेटल डाउन होने लग गया, तो उसको बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट, ओके। तो बेसिकली होता क्या, बेसिकली KSP को मैं अगेन डिफाइन कर रही हूँ कि KSP बेसिकली किसी भी सोल्ट का होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ इट्स आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो आयंस मींस कोई भी सोल्ट है हमारा, उसकी आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो उसकी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ईच आयनिक कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स आयंस फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ दैट सोल्ट। इज इट क्लियर? व्हाट इज द what is the solubility product? It is the product of concentration of ions in saturated solution, okay. Each ionic concentration raised to power equal
number of ions formed by dissociation of that salt. कितने केटाइंस बन रहे हैं उतना पावर इधर आ जाएगा, कितने एनाइंस बन रहे हैं उतना पावर इधर आ जाएगा. इन केस ऑफ AgCl, X वैल्यू इज 1, Y वैल्यू इज 1. ओके, हियर 1 इज 1 पावर हो जाएगा. ओके, बट इन हमने देखा एल्यूमिनियम सल्फेट में, एल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस 2 एल्यूमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन. तो हियर X वैल्यू इज 2, Y वैल्यू इज 3. ओके, तो कोई भी सॉल्ट को देख के आप जनरल उसका KSP वाला फॉर्मूला ऐसे डेराइव कर सकते हैं. और S हियर इज रिप्रेजेंट सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट. जैसे सॉल्ट का S पार्ट डिसोल्व है लेकिन वो आयंस 2 बना रहा है, केटाइन 2 बना रहा है, एनाइन 3 बना रहा है, तो क्या होगा, केटाइन की कंसंट्रेशन 2 टाइम हो जाएगी, एनाइन की कंसंट्रेशन 3 टाइम हो जाएगी. ओके, सोल्ट का तो एक ही मोल डिसोल्व हो रहा है, बट सोल्ट आयंस बनाने के बाद उसका 2 टाइम 3 टाइम लाइक ऐसे हो जाएगा. ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो उसके आयंस की कंसंट्रेशन आएगी वो तो KSP बोलते हैं. उसको एक टर्म दे दिया हमने KSP, दैट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्ट. किसी भी सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी फिक्स होता है. बट सपोज हम एनी हाउ करके आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं. ओके, या हम कहेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया कि नहीं हुआ, ये भी हम किससे डिसाइड करेंगे कि उसमें जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे. अगर वो प्रोडक्ट KSP के इक्वल आता है तो सैचुरेटेड है, अगर कम आता है तो अनसैचुरेटेड है, और ज्यादा आता है तो इट मींस दैट टाइम आपका सोल्ट PPT बनने लग जाएगा. PPT बनने का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो ज्यादा है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ डिसोलेशन. इससे ज्यादा जैसे आयंस हो जाएंगे तो क्या होगा, सोल्ट सेपरेट आउट हो जाने लग जाएगा. जैसे हमारा सोप इंडस्ट्री है ना, सोप इंडस्ट्री में जो सोप बनती है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, लाइक दैट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं RCOONA. ओके, RCOO माइनस प्लस Na प्लस, लाइक दैट. तो इनका जो KSP है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एसीटेट नेगेटिवली चार्ज आयन एंड Na प्लस आयन. राइट, हमें ये KSP हमें पता है कि ये इतना पार्ट सोल्यूबल होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सोल्यूबल फॉर्म में रह रहा है. इसका मतलब हमारा अभी वो सैचुरेशन पॉइंट से हाई ले जाना है हमें. तो हम क्या करेंगे, आइदर दिस और दिस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जैसे ही ज्यादा हो जाएगा KSP से तो सोल्ट हमारा क्या होने लग जाएगा, सॉलिडिफाई होने लग जाएगा. तो इसके प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना. तो अनदर फैक्टर इज कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, वो भी इसी से रिलेटेड है कि बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम. ओके, तो बेसिकली बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ये सब चीजें कनेक्टेड है आपकी. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने NaCl ऐड कर दिया तो बेसिकली हमारे जो सोल्ट था, सोडियम स्टीरेट बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बोल सकते हैं. जैसे हमने सोडियम डाला तो ये आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, सोडियम आयन बढ़ गया आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, यानी सोप आपकी सेपरेट आउट होने लग जाएगी सॉल्यूशन में से. ओके, तो दोनों चीजें हैं, एक हमारा KSP आयोनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया KSP से, तो और सेकंड वन इज हम कहेंगे कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ NaCl इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो अनडिसोसिएट फॉर्म ऑफ जो सोप है हमारी वो सेपरेट आउट होने लग जाएगी. ओके, तो KSP बेसिकली रिप्रेजेंट, तो जिन सॉल्ट्स के KSP हायर होते हैं, ओके, वो सॉल्ट्स हमारे क्या होंगे, लेस सोल्यूबल होंगे. KSP हायर मींस सैचुरेटेड के आसपास ही होगा. हाई, KSP लो इट मींस सोल्यूबिलिटी
लो। ओके, तो केएसपी से डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट कितना सोल्यूबल है ना, जिन सॉल्ट्स की। तो बेटा आप ट्राई करना, ये वर्कशीट 1 और 2 के क्वेश्चंस आपको आई थिंक आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। ओके, नहीं आता है तो हम फिर हमारी नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार वर्कशीट 1 और 2 अच्छे से देखेंगे आप। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अटेंडेंस। थैंक यू चिल्ड्रन। थैंक यू मैम।